प्रिंस ने भी बढ़िया गेंदबाजी की है। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है, निहायत ही खूबसूरत शॉट है ये सबसे बेहतरीन शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट था। और अब चलते हैं गेलिन के पास, देखते हैं उनके साथ कौन है। लेकिन एक बार फिर से देख लेते थे किस तरह से खेला है ये शॉट। बिल्कुल जगह में खेला, गैप में खेला, हालांकि 3 फील्डर तैनात किए गए थे। और अब वक्त आ गया गेलिन के पास जाने का। This is what it all boils down to. The Chennai Rhinos versus the Telugu Warriors, and with me is a man who we could easily say is solely responsible for the absolutely fantastic form of the Telugu Warriors. Sir, firstly tell me, how is it working with players that are actors? Amazing, because I think they're good actors, but they're excellent cricketers. What I've seen over the last 1 month, I think we had a lot of practice nets, and matches, and they give the 100%. I think they're very skillful, but they could absorb anything, whatever I said to them, and it's been amazing working with them. Well, it is absolutely amazing and a delight for us to watch them play. What do you think is the strength of this team as opposed to any other team that played here? I think we have all-round strength, because I think we are good in all departments of the game. I think we can bowl well, I think bat well, and feel better than any other team. The only thing is that how we play in this match is very important, because this is a big event for us. I think it's the first time they come in the finals, and hope we win it. Absolutely. Well, the teammates definitely have a lot of amazing things to say about you. We'd like to know, how was your journey in this entire CCL Season 5 with the Telugu Warriors? It was new for me, to be honest with you. But it's a good experience. I enjoyed every moment of it. I've been with them for some time now. I know them personally very well now. And they've been fantastic cricketers. Have you watched any of their films, sir? No, I haven't. I've not heard about them at all. I think Akhil was the one. I think he used to come to my academy in Mumbai to play. But apart from Akhil, I have not seen anybody. I've not heard about anybody. Well, now you do have to go back and watch all their films, because they've listened to every single thing that you've told them to do, isn't it? Well, they're superstars here, to be honest with you, and everybody just goes absolutely wild. When they come on the ground. And of course, besides that, I think they're lovely people. Sir, a lot of home support here for the Telugu Warriors. Do you think they can make it this time and take the title for the CCL Season 5? Hopefully, because I think we have done extremely well in the entire tournament. Every match I think we won, and we have lost only 6 to 7 wickets in the entire tournament. So we're in great form. I hope they continue today as well. Well, we hope to see you again next season with the Telugu Warriors, and you never know, if they make it this time, I'm sure all credit goes to you. Thank you so much for joining us. It's over to you guys. पावर प्ले समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद 32 पर 1 चेन्नई राइनोज, और अच्छा संघर्ष देखने को मिल रहा है। शुरुआत में एक झटका मिला था चेन्नई को, लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर बनी है। पावर प्ले की समरी 36 डॉट बॉल, माफ़ कीजिए, 6 ओवरों में 32 रन बने और 1 विकेट गंवाया है। 4 चौके पड़े, 5.33 की औसत से रन बने हैं। कुछ खास गति के साथ रन नहीं बने, लेकिन गति को तेजी प्रदान करने की क्षमता है इन दोनों खिलाड़ियों के पास। चलिए एक बेस तो बना लिया उन्होंने, क्योंकि अगर आपने 6 ओवर्स तक एक ही विकेट खोया है, तो अब आपके पास 14 ओवर है 9 विकेट खर्चने के लिए। और यहाँ से अगर आप थोड़ी सी परसेंटेज अपनी शॉट्स की और रिस्क फैक्टर को चेंज कर दें, तो हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि अपने पर्सनल स्कोर से ज़्यादा है कि आपका ये फाइनल है। आप ऐसा स्कोर बनाने की कोशिश करें जो कि एटलीस्ट आपके गेंदबाज जो खुल के गेंदबाजी कर पाए। अब यहाँ पे मुझे टेंटेटिव अप्रोच लग रही है इन दोनों बल्लेबाजों की। थोड़ा बहुत दबाव में जूझ रहे हैं यहाँ पर चेन्नई के बल्लेबाज, और इस बार चहलकदमी की थी और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी। रघु अपना चौथा ओवर डाल रहे हैं, बहुत ही किफ़ायती रहे हैं, 12 रन दिए सिर्फ, और एक
मूल्यवान विकेट भी लिया है उन्होंने। ये उनका चौथा ओवर, 13 डॉट बॉल फेंके हैं। तो बढ़िया गेंदबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नियंत्रित गेंदबाजी हो रही है। वो निरंतरता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कल भी बढ़िया गेंदबाजी की थी, आज भी बिल्कुल विकेटों पर निशाना साधा हुआ है और ज़्यादा जगह नहीं दे रहे। फलस्वरूप बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं, शॉट्स नहीं लगा पा रहे हैं बड़े। इस बार बाहरी किनारा, सिर्फ 1 रन मिलेगा। बिल्कुल, अब थोड़ी सी पेस पिक करनी पड़ेगी खेल की, थोड़ा सा इंटेंट दिखाएं, थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाएं, क्योंकि यही मौका है। इसके बाद अगले साल इन्होंने खेलना है और टाइम नहीं होता आपको कैचअप करने का T20 में। अगर आपने 1-1.5 ओवर सोचने में लगा दिया तो उसकी फिर आप रिकवरी करते आप और समय वेस्ट करेंगे। 50 ओवर में आप थोड़ा समय ले सकते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप 8-10 गेंदें और ज़ाया कर सकते हैं, क्योंकि इतना समय रहता है कि आप उसको कैचअप कर लें। बिल्कुल ज़्यादा दबाव अपने आप पर नहीं बनने देना है यहाँ पर चेन्नई के बल्लेबाजों को। और ये दबाव वाला मैच है अतुल, और दबाव को झेलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं लग रहा है जूझ रहे हैं उस दबाव में चेन्नई के बल्लेबाज। यार दोनों ही बल्लेबाजों ने रन बनाए, तो इसका मतलब ये है कि फॉर्म में है। और जब बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म होता है, और आप की कैरियर में भी ऐसा कुछ आया होगा, इसके बारे में अगले ओवर में बात करेंगे। 37 पे 1। पर 1 चेन्नई राइनोज 7 ओवर के बाद आज टॉस जीता था तेलुगु वॉरियर्स ने। पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और रघु ने अपने 4 ओवर खत्म किए, 1 विकेट लिया 15 रन देकर। अब ग्राउंड से बाहर थोड़े थके थके से लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो किरदार था बखूबी निभा कर बाहर चले गए हैं। इकोनॉमी की अगर बात करें तो रघु एकदम शीर्ष पर, बहुत ही कंजूस गेंदबाज मानता हूँ। 5.48। उसके बाद है चेन्नई राइनोज के विष्णु। तो जहां तक रघु के बारे में बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है इस सत्र के CCL में।